everyone, and a very warm welcome to the WGH India Dialogue Series on engagement of frontline health workers in COVID response in India. The WGH India Dialogue Series started with listening to the concerns and challenges of ASHAs. The series was organized, started in the month of June, which garnered an overwhelming response, leading us to take the series forward, and we brought in the auxiliary nurse midwives in the month of July to understand their perspectives. Taking the series forward, here we are bringing forth another important cadre of health workers, not talked about much, is the members of women collectives and self-help groups. Today, we'll be hearing their experiences, contributions, challenges, and concerns while engaging in COVID response work on the ground. This part 3 of our dialogue series on women collectives is being hosted in collaboration with Roshni, Center of Women Collectives Social Action, a technical support unit to the Ministry of Rural Development, hosted at Lady Irving College. Technically and financially supported by India, Roshni works with the women collectives to lead social action on food, nutrition, health, wash, and gender. The center is a knowledge and capacity building hub for scaling up day NRLM's strategy for social development and activities under Poshan Abhiyan. Let me also take a moment to reflect on the journey of women in global health, recognizing that more than 75% of the healthcare workforce is women, and yet they continue to be a minority in the decision-making and leadership spaces. This actually served as a motivation to change and bring gender parity in these spaces. And Women in Global Health was founded in 2015 as a movement. WGH operates in different geographies through its country chapters, and we have around 9 chapters in operation and 19 more in the pipeline. The India chapter of Women in Global Health was formed last year to take this agenda forward in India. As COVID-19 spreads across the world, the India chapter recognized the crucial role the frontline health workers are playing and sought to provide a platform to not just share the best practices and learn from each other, but also aim to amplify their contributions and highlight their challenges and concerns. So from our previous dialogues, we have understood that ASHA workers, Anganwadi workers, and ANMs have been at the forefront of healthcare service delivery. But an important yet ignored cadre of women, that is the SHG members, have assisted these frontline health workers in many ways, in filling various service delivery gaps and also reaching out the most underserved and vulnerable population groups. The list of activities include supporting the doorstep delivery of dry ration, masks, sanitizers, soaps, etc., ensuring delivery of essential healthcare services, conducting counseling sessions, awareness generation, etc. So with this aim, we want to amplify the contribution of this cadre of frontline health workers and highlight their concerns from their COVID response work. We bring to you an excellent panel comprising of members of women collectives and self-help groups from 4 states, Orissa, Bihar, Chhattisgarh, and Kerala, who will be giving us a glimpse of the ground reality. This is the first session in this part 3 of the dialogue series. The key points emerging from today's discussion will feed into the next dialogue, which is scheduled on 21st August, same time, where we'll reflect upon the policy level concerns with various state and national level stakeholders. We request you to stay on with us through the series and participate in these engaging discussions. Before we move ahead, I would like to share a few ground rules for easy moderation. Please keep your video and audio off. When you're joining in, do change your device's name with your original names. The session is being live broadcasted on Facebook and also recorded. The files will be uploaded soon online. You can write your questions in the chat box and we'll take all the questions together in the end.
We also have our team member Sneha, who will be translating the session in the chat box with TRA written in front of it for you to easily identify. To share your thoughts and comments and feedback, we'll be circulating a feedback form towards the end. So please fill in that. And lastly, if you need any certificate or want to know more about how to join India chapter, please write to us in the email ID mentioned below. So with this short note, I welcome you all once again and thank you for joining us, and thanks to the WGHI team and Roshni team for putting this series together. So I hand over to Neha, who will be moderating the session today along with Bharti from the Roshni team. Neha? Thank you, Deepika. So I understand that we are a multidisciplinary group today. So we thought we'd begin with a brief background and describe a few terms that we will hear frequently in today's session. Our panel has women collective members from the National Rural Livelihoods Mission, which is a poverty alleviation program run by the Government of India. NRLM engages women's groups over a long period of time in developing their human and social capital, investing in their capacity to save, access credit, promote livelihoods, and participate in community development activities in a systematic manner. Next slide, please. The realization that self-help group women were affected by recurring illness and that they spent a lot of their savings and credit on health expenditure led NRLM to integrate food, nutrition, health, wash, and gender strategies into their framework. And this is now a component of their social inclusion and social development strategy. SHG members are thus involved in demand generation for services, ensuring access to entitlements, promoting behavior change, providing emergency funds for food security, and fostering convergence with allied departments. Next slide, please. Women from over 713 lakh households have been mobilized and are a part of this network, making it a suitable platform for behavior change and development of rural communities. So how does this work? This is a federated 3-tier structure of women's groups, and we have SHGs at tier 1, village organizations which comprise of 8 to 10 SHGs at tier 2, and cluster level federations at tier 3, which are formed with 15 to 20 VOs federating. You can see on the slide that those at the village organization level or VO level are leaders or community resource persons. And at the CLF level, we have women who are CLF leaders and those working as master trainers. I highlight this today because we have a diverse panel and each panelist works at a different level and in different domains. They're also part of institutions with varied maturity, so this will be reflected in as they share different experiences. Next slide, please. The experience of working at the COVID-19 frontline has brought a lot of learning about women's leadership, their ability to support their communities, and also the resilience of these groups. So to explore some of these areas and build upon them, we'd like to hear from our panel about their experiences and concerns during and post-lockdown. I now invite my colleague Bharti, who is joining us from Bastar, Chhattisgarh, to introduce our panel and take this forward. Thank you, Neha. It's a privilege to welcome our speakers on behalf of Women in Global Health, India Chapter, and Roshni Center of Women Collectives led Social Action. We have representatives of women collectives joining us from Bastar district of Chhattisgarh state, Punia district of Bihar, Koraput district of Odisha, and from Ernakulam district of Kerala. Today's first speaker is Asmita Kumari. She is the secretary of Sahelix Cluster Level Federation, a community resource person for Manrega, and also she works at a help desk at the Block Program Management Unit of Kasba Block in Punia district. She has been associated with the Bihar Rural Livelihoods Mission since 2013. Our next speaker is Lalita Baghel. She has been associated with Chhattisgarh SRLM Bihan from 2012 when she became an SHG member. She is basically a gender resource person
master trainer who conducts trainings for women collectives within and outside Chhattisgarh state. Since 2017, she is also a cluster level resource person supporting the FNSW related activities in her cluster, which is in Bastar block. Our third panelist for today is Tulasi Hantar. She has been associated with Odisha Livelihoods Mission from 2014 as an SAG member. She is a community resource person for community mobilization and also working as a Bhushan Sakhi. At present, she is also supporting the mission as a block level trainer on FNSW theme. Our fourth panelist is Sajini Santosh, who has been a neighborhood group member since 2002 under Kudumbasri in Kerala's Ernakulam district. She is currently the chairperson of the Community Development Society, which is equivalent of the CLF level in Kerala. अभी हमारे स्पीकर्स के लिए कुछ सवाल, जिसमें कि सबसे पहले कोरोना महामारी के समय में समूह के लिए बहुत सारी नई जिम्मेदारियां आ गई है। इसी विषय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों से हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्पीकर हैं अस्मिता दीदी, इनसे मैं थोड़ी सी बात करूंगी। जैसे कि बिहार, जहाँ से वो कस्बा ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, बिहार का कस्बा ब्लॉक जो कि ऑरेंज जोन में है, और बिहार ही पहला ऐसा राज्य था जिसकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये आदेश निकला था कि कोरोना के लिए जागरूकता और हर प्रकार के सहयोग में समूह की दीदियों की भागीदारी रहेगी। इसी के लिए आपके ग्राम संगठन से राशन कार्ड की व्यवस्था करवाने हेतु घर घर का सर्वे किया गया था। इसमें आपका क्या अनुभव रहा है और घर वालों ने कैसा सहयोग दिया, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। अस्मिता दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मेरा नाम अस्मिता है, मैं बिहार की पूर्णिया जिले की कस्बा प्रखंड की हूँ। आवाज कम कर दीजिए। और मैं जब मुझे राशन कार्ड बनाने का काम मिला, जब मैं गांव में सर्वे के लिए जाती थी तो मेरे घर वाले मुझे सर्वे से जाने के लिए मना करते थे कि नहीं, अभी कोरोना चल रहा है तो तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन मैं सोची जब मुझे मिला है राशन कार्ड, जिसके पास नहीं है, गरीब है, राशन कार्ड बनाना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैं जब राशन कार्ड बनाने के लिए गांव में जाती थी, घूमने के लिए दीदी के घर जाती थी, दीदी को आवाज लगाती थी कि दीदी आप बाहर आइए, आपसे कुछ पूछना है या कुछ फॉर्म है जो कि आपका भरना है, तो दीदी बाहर आना नहीं चाहती थी। और बहुत सोचती थी पता नहीं कहाँ से आई है या किस किस से ये मिल के आई, किसके यहाँ आंगन गई है, किस किस से मिल के आई, तो वो जल्दी घर से बाहर नहीं आती थी। जब उसे बोलते थे कि नहीं दीदी मैं राशन कार्ड आपके यहाँ नहीं है, मैं उसका सर्वे के लिए आई हूँ, अगर नहीं है तो मैं बनवा दूंगी, तो ही दीदी आती थी। या उसको बोलते थे आधार कार्ड लेके आइए, जो भी पूछती जल्दी जल्दी बता के, वो यहाँ तक कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोलती थी कि हाँ दीदी आप आए हैं तो आप बैठिए। पहले जाती थी तो बैठने बोलती थी, दीदी क्या बात है, नहीं, वो सही से बात करती थी, लेकिन उस टाइम पे वो बैठने के लिए भी नहीं बोलती थी। और जैसे हुआ जल्दी जल्दी बता के वो फिर चले आते थे हम लोग। लेकिन एक तो गांव में जब जाते सर्वे के लिए तो वहां तो दीदी हमारी बात जल्दी सुनती नहीं थी या फिर जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती थी। और उसके बाद जब मैं सर्वे करके घर आती थी वापस, तो फिर घर में भी हमें 2-4 बातें घर वालों से सुनना पड़ता था, क्योंकि मैं घर से बाहर जाती थी और मेरे घर में भी मेरे परिवार में मेरी बच्ची है, मेरी सास हस्बैंड सब है, तो बोलती थी तुम बाहर गई थी गांव घूमने, किसके यहाँ से घूम के आई थी, क्यों जाती हो, तुम घर में भी कोरोना फैला दोगी। इस तरह से मेरे साथ तो मतलब कि घर में गाली गुलाया, बुरा बर्ताव मेरे घर में मेरे साथ होने लगा। फिर भी मैं किसी तरह से 3 दिन का सर्वे था, मैं 3 दिन सर्वे के लिए गई, घर में बात बोली, गाली सुन के भी। जब मैं तीसरे दिन सर्वे के लिए गई तो मैं एक दीदी के यहाँ गई सर्वे के लिए, उस दीदी को बाहर बुलाई, उन्होंने मुझे आधार कार्ड दिया, मैं उसका आधार कार्ड का नंबर लिया, जो भी चीज मुझे पूछना था उस दीदी से मैंने पूछ ली।
जब मैं सर्वे करके घर आई तो मुझे उसका सुबह की पता चला कि जिस दीदी के यहाँ मैं कल गई थी सर्वे के लिए, वो उसका जो टेस्ट करवाई थी वो उसका कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। तो हम लोग फिर बहुत डर गए, और घर में भी मुझे ये जानने के बाद कि जिसके यहाँ गई थी सर्वे के लिए वो कोरोना पॉजिटिव उसका केस आया है, घर में मुझे बहुत ही सुनना पड़ा, सास से, परिवार से, गार्जियन से बहुत ही सुनना पड़ा। फिर मुझे घर में एक अलग ही रूम दे दिया गया कि इससे तुमको कहीं नहीं जाना है, किसी से, मेरे घर में परिवार से, बच्चे से, किसी से भी तुमको बातचीत कुछ भी नहीं करना। मैं 2 दिन मैं अपने घर में अकेली रही, किसी से बातचीत नहीं की, घर में ही रही। उसके बाद तीसरे दिन फिर मुझे पता चला कि आंगनवाड़ी में कोरोना टेस्ट के लिए एनएम दीदी आई है कोरोना टेस्ट के लिए। फिर मैं सबसे पहले जाके वहाँ पे अपना कोरोना टेस्ट करवाई। फिर अपने बच्चों को भी, मेरे परिवार में जितने भी लोग थे सबका मैंने वहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाया, और फिर पता चला कि वो मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। फिर 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज भी आया कि आपका जो है पॉजिटिव नहीं आया, कोरोना नेगेटिव में है। मुझे जब मैं एक तो मुझे कभी कभी ये लगता था कि तो मैं घर से जब बाहर जाती हूँ काम के लिए, सर्वे के लिए, तक मेरी बात दीदी भी बाहर में नहीं सुन रही है, और जब मैं वहां से घर आती हूँ तो घर में भी मुझे 2-4 बातें सुनने के लिए मिल रही थी। तो मुझे बहुत ही बुरा फील होता था, मन करता था कभी कि काम ही ना करूं या फिर घर ही नहीं आऊं। मुझे बहुत ही सर्वे करने में बहुत ही दिक्कत हुआ कोरोना के कारण। धन्यवाद स्मिता दीदी, आपने तो काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करके ये सारे चीज़ों का फिर भी अपने कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम किए हैं इस परिस्थिति में। अभी मैं हमारे बस्तर से जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ललिता दीदी, उनसे भी इसी विषय पर उनकी कुछ अनुभूति जानना चाहेंगे। ललिता दीदी। आप सभी को मेरा जय बिहान। मेरा नाम ललिता बघेल है और मेरा क्लस्टर घोटिया है, और मैं स्वाभिमान के तहत स्वाभिमान में भी जुड़ी हुई हूँ। और जैसे कि अभी भारती मैम ने हमसे प्रश्न किया, ये तो बहुत जो कोरोना के महामारी में हम लोगों ने अपने गांव में जैसे समूह से जुड़े हैं, समूह में से पहले महामारी से पहले तो सब एक जगह हम लोग इकट्ठा बैठते थे। अभी वैसा हाल नहीं रहा, इस महामारी से सभी लोग डर चुके हैं। हमारा गांव तो बहुत 10-15 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ता है, और बीच में गांव जैसे इस गांव से उस गांव हम लोग को आने का जाने का नहीं है, गांव वाले मना कर देते थे। और जब हम लोग जाते भी थे तो हम लोग से बात नहीं करते हैं हम के लोग, और जैसे वो साफ मना कर देना है कि कोतवाल सरपंच ने मना किया है तो उनको इधर से उधर नहीं आना है। और जैसे मेरे को यह चीज बहुत बेकार लगता था, जैसे हम लोग महामारी में पहले अच्छा बैठते थे, हर किसी चीज के लिए, जरूरत के लिए हम लोग बैठ के निर्णय लेते थे, वो अब नहीं हो रहा है। कोई दीदी अगर परेशान है तब भी हम लोग उसका सहयोग नहीं कर पा रहे। और जैसे अभी मैम ने हम लोग से प्रश्न किए कि क्या क्या परेशानी आई, तो अभी जैसे हम लोग के गांव में मेरे घोटिया क्लस्टर में मतलब मेरे घोटिया स्वास्थ्य केंद्र में एक डिलीवरी केस आया। उस डिलीवरी केस में एक और कुछ बोलना है ललिता दीदी? ठीक है ललिता दीदी, और कुछ बोलना है? हाँ, जैसे कि हम लोग एक साथ बैठकर जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, उससे हम लोग एक साथ जो एकजुट होकर जो भी निर्णय लेते थे वो नहीं होता है। और जैसे समस्या तो बहुत आई है, लेकिन उस समस्या को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमारे बस्तर ब्लॉक में, या जो हमारे साथ हम लोग के गांव में, उसमें हम लोग को बहुत ही परेशानी हुई है। आने जाने का भी सुविधा नहीं है ना, कुछ नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत ललिता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक दूसरे विषय पे भी बातचीत कर सकते हैं, मतलब करने जा रहे हैं। जैसे कि 2016 से NRLM में महिला समूह के प्रमुख जितनी गतिविधियां पहले से ही रह रही है, उसके साथ खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि विषयों को भी जोड़ा गया है। और इसी के लिए ग्राम संगठन अपने गांव के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े हुए सभी जरूरतों को आगे लाने के लिए सहयोग कर रही है। तो मेरे जो अगले कुछ सवाल है, इन्हीं जरूरी सेवाएं दिलाने में आपकी, मतलब हमारे जो हमारे जो 4 राज्यों से जो स्पीकर्स आए हुए हैं, उनकी क्या अनुभूति रही है, उसी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अब मैं तुलसी दीदी से ये थोड़ी सी जानना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ उड़ीसा की कोरापुट से जुड़े हुए हैं, कि क्या आप हमें ये बताएंगे कि कोरोना के समय पे स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ काम करने का आपका क्या अनुभव रहा? तुलसी दीदी। तुलसी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम तुलसी हंताल है। और अभी जो मेरे लिए क्वेश्चन आया था, आंगनबाड़ी आशा दीदी के साथ काम करने से हमको क्या दिक्कत आई। शुरू में तो उनके साथ हमको काम करने से दिक्कत आई। पहला तो उनके साथ हमको जानकारी नहीं था। दूसरी बात ये है कि सरकार की सभी सुविधा उन्हीं के पास था, बस हम लोगों को समझाकर वो जो सरकार की सुविधा आंगनबाड़ी से मिलता है वो उनका खिलाकर उनको स्वास्थ्य का ठीक रखना था। तो इसीलिए हमको बहुत दिक्कत आई। शुरुआत में हम बहुत सारे मीटिंग किए। फिर बाद में जब आंगनबाड़ी दीदी और आशा दीदी, एनएम दीदी जान पाए कि हम कुछ स्वास्थ्य के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब शुरू से अभी तक वो हमारे साथ अभी समझ गए और शुरू से अभी तक हमारे साथ मिलजुल कर अभी काम कर रहे हैं। और कोरोना के पहले तो बहुत अच्छे तरह से हम मिलजुल कर बहुत अच्छे तरह से काम किए, लेकिन कोरोना की परिस्थिति के बाद आंगनबाड़ी में जो खाद्य उनको मिलता था, जो गर्भवती, जो किशोरी या हमारा जो प्रसूति महिला को जो मिल रहा था, वो सब बंद हो गया। तो हम आंगनबाड़ी, एनएम और आशा दीदी के साथ मिलकर डोर टू डोर जाकर वो जो सरकार की सुविधा उनको देते थे, फिर बाद में उनको स्वास्थ्य के बारे में उनको समझाते थे और हम डोर टू डोर उनको विजिट करते थे। और हमारे जो स्वाभिमान की तरफ से हम मैं 1 मंथ में तो वहीं पर जाकर मीटिंग करते थे, मैत्री बैठक के जरिया हम माप लेकर उनका माप लेते थे। और वो जो टारगेट ग्रुप है उसमें से कौन सा कुपोषण शिकार हुआ है उनका नाम लिखकर तुरंत हम आशा दीदी को और आंगनबाड़ी दीदी को हम वो ये बोलते थे कि दीदी वो अस्वस्थ है, वो चिन्हित करके उनको हम तुरंत उनको फोन के माध्यम से उनको बोल देते थे। फिर दूसरी बात ये है कि अभी तो ज्यादा लोग को लेकर भी मीटिंग करना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब मिलजुल कर अभी काम कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी दीदी, अपनी जितनी भी अनुभूति है बताने के लिए। अभी मैं वापस अस्मिता दीदी के पास जाना चाहूँगी और उनसे फिर से ये थोड़ा सा जानूंगी कि बिहार का जो हमारा कस्बा ब्लॉक है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, और इस साल महामारी भी आ गई है ना। तो इस साल की महामारी के समय में आपने अपने समूह के साथ मिलकर गांव के लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए जो कार्य किए उसका क्या कुछ अनुभव रहा, थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे यहाँ हर एक बार जो है बाढ़ के समय गांव में बाढ़ आ ही जाती है।
तो हम लोग इससे पहले जब बाढ़ आती थी तो एक तो जिस गांव में या जो मोहल्ले में या जहाँ पे भी बाढ़ आती थी वहाँ की दीदी पहले से ही अपना सूखा भोजन तैयार करके रख लेती थी, चाहे सत्तू हो या मूढ़ी हो या चूड़ा हो, जो भी वो अपना सूखा भोजन इससे करके रखती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आने से पहले कोरोना का महामारी आ गया, तो वो अपना सूखा भोजन का भी प्रबंध नहीं कर पाई कि बाढ़ आएगा तो हम उसमें खा सकें। तो हम लोगों ने जब बाढ़ आती थी तो हम लोग हर एक साल जो है अपना CLF से उसके लिए 2 टाइम का भोजन उसको उपलब्ध करवाते थे, नाव के जरिए उसके गांव में भोजन पहुंचवाते थे और वो उससे वो खाते थे। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं, हम लोग नहीं कर पाए कोरोना के चलते, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं डर था कि मैं खाना लेके वहां जाऊं तो एक तो नाव के जरिए जाऊं, वहां नाव पे भीड़ लगेगी, फिर या उस गांव में बाहर से मजदूर आए हुए हैं तो हो सकता है उसे कोरोना हो, ये डर से हम लोग ये नहीं कर पाए। इस बार हम लोग उसको खाना उपलब्ध नहीं करवा पाए। लेकिन उसमें जो है एक पोषण वाटिका जो लगाई जाती है, तो बाढ़ के आने के कारण बहुत सारी दीदी का पोषण वाटिका जो है वो बाढ़ में खत्म हो गया। लेकिन कुछ दीदी का जो है जो जिसका ऊंचा जगह है, जिसका बाड़ी में बाढ़ का पानी नहीं जा पाया, वो दीदी अपना सब्जी हर एक साल लगाती है और इस बार भी लगाई थी। वो दीदी जब बाढ़ के समय वो सब्जी लेके मार्केट जाती थी बेचने के लिए, उससे अच्छा उसको मुनाफा हर एक साल होता था, मुनाफा कमाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मार्केट में बाजार लगना बंद हो गया, क्योंकि दीदी मार्केट सब्जी लेके नहीं जा सकी बेचने के लिए। तो जिस गांव में जिस दीदी ने सब्जी लगाई थी ऊंचा जगह में, उस गांव की दीदी ही उसके यहाँ जो दीदी के पास पैसा था तो वो दीदी उसके यहाँ से खरीद के लेके जाके अपना खाई, मार्केट तो नहीं गई, दीदी के यहाँ से खरीद के खाई। लेकिन उसके यहाँ सिर्फ गांव की ही दीदी खरीदने आई, लेकिन वो जब मार्केट में जाती थी तो बहुत सारा दीदी सब्जी खरीदती थी। तो सब्जी जब दीदी खरीद के लेके जाती थी तो उसके अलावा भी उसके पास सब्जी जो बच जाती थी, और उसके गांव में जो दीदी पूरा निर्धन थी, जो सब्जी खरीदने में असमर्थ थी, उस दीदी को उन्होंने कुछ 2 टाइम 3 टाइम के लिए जो भी हुआ थोड़ा बहुत सब्जी उस दीदी को मुफ्त में भी दिए। और फिर कुछ दीदी ऐसा भी थी जो कि बोरी में मट्टी और गाय का जो है खाद भर के उसमें जो है, जिसको जगह कम है, बाड़ी उड़ी नहीं लगा सकती है, उन्होंने या पानी आ जाता है उसका बाड़ी में, उन्होंने 1-2 बोरी में लत वाला सब्जी लगा के रखी थी, जो कि वो छत पे हो या टीना पे हो या खप्पर पे जो भी हो, वो बोरी में लगा के उस पे चढ़ा के लगाई थी। उसमें तो बेचने लायक उतना नहीं फरा, लेकिन इतना सा फरा कि वो उससे तोड़ के अपना खुद का खाई, और अपना खुद का खाने से अगर कुछ ज्यादा हुआ तो वो बगल की जो अपने परिवार में थी उससे भी उन्होंने खाने के लिए दिया। बोरी वाला और भी बहुत सारी दीदी लगाई थी और अपना भी खाई और बगल में जो है उसे भी खाने के लिए दी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी और अच्छी अनुभूति रही जो कि आपने हमारे साथ शेयर किए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कॉलीग स्नेहा टू टेक माय another panelist. Thank you. Okay, so now we have a question to Sajani Chechi, who has been part of a neighborhood group since 2012. And she's been part of this collectives network. She's the longest for the longest amongst those in our panel. So Chechi, as chairperson of the Community Development Society, what was your experience of setting up community kitchens that sell low-cost free meals in an emergency? And what other support were you doing for migrants and the elderly? If you could please share your experience. Shall I translate? Hello? Yeah. Yes, Chechi, translate, you know. വേണ്ട, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ? മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നമ്മൾ ഈ COVID-19 ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ
ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മള് ഗ്രാൻഡ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് വയോജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഫുഡിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മളോട് അവർ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തു. ഈവൻ അവർ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നൈബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പോലും ഒരു അല്പം ഭീതിയോടെ കാണുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ അവരെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മളെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അത് നമ്മള് വില്ലേജ് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് പാസ്സാവുകയും പോവുകയും ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരികയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് വില്ലേജ് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മള് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക്, ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം പുറത്തു നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം നൈബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയും വില്ലേജ് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് വീടുകളിൽ നമ്മുടെ NHCയില് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വെച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട്, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് വില്ലേജ് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പലരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് FB പോസ്റ്റിലൂടെ എല്ലാം ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ നൈബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വഴി, JLG ഗ്രൂപ്പ്സ് വഴി വെജിറ്റബിൾസ്, പിന്നെ പുറമെയുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വഴി റൈസ്, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, അതുകൂടാതെ നമുക്ക് MLA, MP എന്നിവരെല്ലാം നമ്മൾ സമീപിക്കുകയും അവർ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണി റേസ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. Thank you, Chechi. ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Just to summarize in English, what Sajni is mentioning is that initially through discussions with some of our members, we found out that elderly members, people who did not have access, उनको बहुत मुश्किल हो रहा था डे टू डे खाना बनाने के लिए. तो फ़ोन कॉल करके वो कभी कभी नेबर से हेल्प मांग लेते थे. बट देन वी डिसाइडेड कि हम लोग इन सबको मिलके एक हमारे प्रोग्राम के तहत सपोर्ट करेंगे. उसके लिए हमने विलेज काउंसलर से बात की, लोगों को आइडेंटिफाई किया किन किन को ज़रूरत हो सकती है. इसमें हम लोग ने गरीब लोगों के लिए भी आइडेंटिफाई किया और हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू वी रेस्ड फंड्स थ्रू सपोर्ट फ्रॉम MLAs. और हम लोग ने अलग अलग सिर्फ चावल और दाल ही नहीं बट वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के धान, ये सब प्रोवाइड किए हैं. क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों ने डोनेशंस देना शुरू कर दिया, MLAs, काउंसलर्स, जिसकी वजह से उनको बहुत यूज़फुल रहा था कि सिर्फ बेसिक फूड नहीं बट अलग अलग तरीके के फूड्स भी दे पाए. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജനകീയ ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയി. ഹലോ, ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോപ്പുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആശ്രയ മെമ്പേഴ്സ്, അഗതിരഹിത DFK മെമ്പേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ മെമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഫുഡിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ജനകീയ ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ദ ഫണ്ട് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ. ജനകീയ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ അവർക്ക് 20 rupeesന് മീൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് ജനകീയ ഹോട്ടൽ. ഇപ്പൊ ഈവൻ പഞ്ചായത്തിലെ poor people has no facility to buy the food from outside. We give the food from the Janagir hotel and the fund is raised by the panchayat. दीदी का कहना है कि जब से लॉकडाउन बंद हो गया और दुकानें शुरू हो गई तो हमने इसी इनिशिएटिव को कंटिन्यू किया थ्रू जनता होटल. मतलब 20 रुपए में आप दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कम रुपयों में अच्छा खाना खा सकते
हैं। इसके लिए हमको विलेज के पंचायत ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। शैलजा जी, थैंक यू। नेहा, over to you. Bharti, should we continue? Yes, sure. Thank you, Neha and Sajmi ji. ना अभी ललिता दीदी से मैं वापस उनसे थोड़ी सी उनसे बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपके ग्राम संगठन महिलाओं, बच्चों और गांव की किशोरियों की सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए भी कार्य कर रही है। क्या इस महामारी के समय पे ऐसी कोई समस्या हुई थी जिसलिए आपको ऐसा लगा कि आप कुछ करना चाहते थे पर नहीं कर पाए? थोड़ा बताइए। जी, जैसे कि हमारे गांव में तो स्वाभिमान के तहत मोचो मानगुन में तो आंगनबाड़ी और बच्चे को टीकाकरण ये तो लोगों की दूरी के हिसाब से करते हैं। लेकिन अभी जो इस जुलाई महीना में एक ऐसा भी परेशानी आया। मेरे घोटिया में एक स्वास्थ्य केंद्र है। उस स्वास्थ्य केंद्र से मिनिमम 25 किलोमीटर दूरी से एक केस आया था जिसमें गर्भवती दीदी को लाया गया था। और वहां से जब उस दीदी को लाया गया तो उनको दर्द ज्यादा होने के कारण एम्बुलेंस में 102 में लाकर छोड़ दिए। तो उस दीदी को दर्द होने के कारण उस दीदी का पेट में ही बच्चा मर गया था। तो मेरे गांव में मतलब वहीं की नर्स दीदी हैं, उनके पास मेरा नंबर था। उन्होंने मेरे को 10:30 बजे रात को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि दीदी 25 किलोमीटर दूर है इनका गांव, रतेंगा गांव से है, तो इनको छोड़ने के लिए मेरे को एक गाड़ी चाहिए था, आपके पास है, आप भेज सकते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं एक बार ड्राइवर से बात कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूरा बात बताया था कि ऐसा से इतना लेट होने के कारण उनका बच्चा खत्म हो गया था। तो मैंने अपने ड्राइवर को फोन लगाया और कहा कि एक गर्भवती महिला थी जो डिलीवरी होने के लिए हमारे घोटिया स्वास्थ्य केंद्र में आई हुई थी, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप उसको ले जाके छोड़ोगे क्या? तो मेरे ड्राइवर ने कहा बच्चा मर चुका है, 10:30 बज रहा है, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो मैं उसको यह जब बोली, वो भी एक महिला है, वो परेशान है, मैं तुमको 400 रुपए रोजी दूंगी, 400 रुपए दूंगी सिर्फ 2 घंटा के लिए, आप उसको ले जाके छोड़ दो। तो वो नहीं बोला। तो उस समय मेरे को बहुत खला, मैंने छोटा बड़ा ऋण लेकर मैं 2 गाड़ी खरीदी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं गाड़ी जान सकती, चला पाती, तो मैं उस दीदी को ले जाके मैं खुद ले जाके उसके घर में उसको छोड़ के आती। उस समय मुझे बहुत ही दुखद महसूस हुआ कि मैं उनका हेल्प नहीं कर सकी, मदद नहीं कर सकी। और कुछ विषय है ललिता दीदी जो कि आप बोलना चाहोगे? हाँ, जैसे कि और एक मेरे घर के बगल में मियाँ बीवी और 2 बच्चे रहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का छोटा मोटा चीज हर हमेशा ही महामारी के दौरान, जैसे हम लोग को स्टेपरी है और जैसे कि हम लोग को महीना में बिंदी चाहिए रहता है या तो फिर चूड़ी चाहिए रहता है, हर चीज मतलब छोटी छोटी खर्च हमको चाहिए रहता है। जब हम वो काम मतलब वो चीज हम जब घर में मांगते हैं, चाहे अपने ससुराल से या तो सास से मांगे या तो फिर अपना पति से मांगे, तो वो कहते हैं कि कोरोना का माहौल है, पेट पालना मुश्किल है वगैरह वगैरह करके हमको टाल देते हैं। अगर वही चीज एक पति 50 रुपए बाटल में अगर दारू पिए तो उसके लिए उसको कुछ नहीं कहा जाता। और अब जब हम इस छोटे छोटे जरूरत जब हमको मांगने का रहता है तो हमको बता न दिया जाता है कि ये नहीं वो नहीं, अभी ऐसा है अभी वैसा है, तो ये सब परेशानी। तो मैं सोची कि अगर अच्छा माहौल रहता, जैसे हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं, माहौल अच्छा रहता, महामारी नहीं आता, तो मैं उस दीदी को समूह से ज्यादा नहीं तो कम से कम 100-200 रुपए का ऋण लेके मैं उसका जरूरत पूरा करती। उस समय भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैं उस दीदी को मदद नहीं कर पाई। बस
ठीक है, ललिता दीदी धन्यवाद। अभी हमारी जो अभी जो तब से जो सब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम सब ये देख रहे हैं कि ये जो लंबे समय की लॉकडाउन, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और बैठक ना अभी हम नहीं कर पा रहे हैं और फोन से ही जुड़े रहने के लिए हमें जुड़े रहने का पड़ रहा है। इन्हीं के कारण से क्या हो रहा है कि समूह का जो मुख्य कार्य है उसमें काफी बदलाव आ रही है। तो हमारे ये जो आखिर के सवाल है इसी से जुड़े हुए हैं कि ये जो कोरोना की महामारी ने समूह के संचालन को कैसे प्रभावित किया है। तो इसमें मैं वापस से अस्मिता दीदी के पास जाऊंगी, वो मुझे उनकी थोड़ी सी अनुभूति बताएंगे इसी विषय पे कि कोरोना की ये महामारी समूह के संचालन को कैसे प्रभावित किया है। अस्मिता दीदी, जैसे कि इसमें आप हमें जैसे कि थोड़ी सी ये जानने के लिए मिली है कि थोड़ी सी लेन देन की समस्या और कुछ कुछ ऐसी समस्याएं रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी अस्मिता दीदी। जी, अभी कोरोना काल में अभी समूह में जो है अभी ज्यादातर स्वास्थ्य पे ही बात हो रही है और समूह का तो बैठक फिलहाल बंद है, उतना दीदी आ नहीं रही है और बुलाने पर भी आना नहीं चाहती है, क्योंकि समूह का जब जीविका में समूह का निर्माण हुआ था तो तभी जीविका का लक्ष्य था कि गांव की जो गरीब दीदी है उसको रोजगार दिलाना है। हर एक गांव में हर एक दीदी को हर एक घर में जो है अपना रुपया वो लोन ले जीविका से और अपना कुछ रोजगार करे, उससे उस रोजगार को धीरे धीरे बढ़ाए भी और लोन वापस भी करे और फिर उससे अपना कुछ घर परिवार भी सही से चला सके। लेकिन अभी कोरोना को लेकर अभी समूह में ज्यादातर स्वास्थ्य को लेकर ही बात हो रही है और जो दीदी को लोन जो ली है वो लौटाना या फिर लेना या फिर उसके बारे में दीदी किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये सब जो है एक तरह से पीछे छूटा जा रहा है। जो उसका लक्ष्य था कि हमें गांव की गरीब दीदी को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, किस तरह, ये सब पीछे जा रहा है। क्योंकि जब समूह में दीदी को बुलाया जाता है कि दीदी आपने लोन लिया है तो आपको फिर जमा भी करना है, आप समूह की बैठक में आइए और 10 रुपया बचत कीजिए या फिर आपने जो लोन लिया है उससे जमा कीजिए। तो दीदी सीधा बोलती है कि मैं समूह में जाके बचत क्या करूं, मैं तो मेरे घर में तो खाने पे लाले हैं, मैं एक टाइम खाती हूँ दूसरे टाइम भूखी रहती हूँ, फिर मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं। मैं जब अपने घर में सही से अपना परिवार नहीं चला सक रही हूँ तो फिर मैं समूह में मैं अपना बचत कैसे करूं या मैं लोन कैसे अदा करूं। मैंने जिस कार्य के लिए मैंने लोन लिया है वो काम मेरा नहीं चल रहा है, चाहे सब्जी के लिए लोन लिया हो या फिर कोई दुकान किया हो या कपड़े की दुकान कुछ फुटपाथ पे अगर बेच रहा हो, ये सब तो सब बंद पड़ा हुआ है। जब मेरे सामान नहीं बिक रहे हैं, मैं कोई भी बिजनेस धंधा नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं पैसा कैसे वापस कर दूं, ये सब समस्या है। और ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो जो मुख्य लक्ष्य जो था कि दीदी को आगे बढ़ाना, वो एक तरह से पीछे छूटा जा रहा है। दीदी के पास जितना लोन था अभी अगर ब्याज अगर उसका जोड़ा जाए तो दीदी के ऊपर उतना ब्याज ही बन गया है। तो दीदी बोलिए कि दीदी मेरे पास जितना मूलधन था उतना ब्याज हो गया, मैं कहाँ से दूं, अब कब तक मेरा काम चालू होगा, कब तक कोरोना खत्म होगा, मैं कहाँ से पैसा दूंगी, मुझे ब्याज माफ कर दीजिए, मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगी, मैं मूलधन कहाँ से दूं, ये सब समस्या आ रही है। दीदी समूह में बैठना ही नहीं चाहती क्योंकि वो पैसा जमा ही नहीं करेगी। जब मैं जमा ही नहीं करूँ तो मैं समूह में क्यों जाऊँ। अगर समूह में की बैठक या समूह में कुछ बात अगर हो रही है तो वो स्वास्थ्य पे हो रही है, स्वास्थ्य पे, सफाई पे हो रही है। ये जो था कि लोन लेना फिर लोन वापस करना, ये नहीं हो रहा। फिर
जब जीविका चल रही थी या कोरोना नहीं था तो दीदी वापस कर रही थी, या किसी दीदी को अगर पैसे का जरूरत था तो वो समूह से ले रही थी, वहां पे उसे कम ब्याज लग रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अगर किसी दीदी को अगर ज्यादा इमरजेंसी अगर पड़ गया, अगर उसे पैसा चाहिए तो वो महाजन के पास जाता है, महाजन से 10 रुपए 20 रुपए 15 रुपए पे उसे पैसा तुरंत मिल जा रहा है और वहां से लेके वो काम कर रही है। तो इससे फिर ऐसा अनुभव हो रहा है कि जहां से जीविका को उठा के थोड़ा ऊपर लाया गया था, महाजन से छुटकारा मिला था, फिर वो समूह की दीदी फिर उसी जगह जाके रुक जाएगी, क्योंकि वो फिर वहीं से लोन ले रही है, रुपया लेके अपना काम कर रही है, या खाना नहीं है तो अपना तो भूखा रहेगी, लेकिन बच्चों को तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा, उसके लिए वो वहां से रुपया लेके अपना काम कर रही है। अच्छा, सही में इसके वजह से काफी सारी परेशानी तो हुई ही है। तो धन्यवाद अस्मिता दीदी। अभी हमारा और एक समस्या भी सामने आया था जो कि ज्यादातर तीनों राज्यों के या ज्यादातर राज्यों में ये होता है। जैसे कि मैं अभी इसके बारे में ललिता दीदी से थोड़ी सी पूछना चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि फोन से जो ट्रेनिंग लेना होता है इसका आपका क्या अनुभव रहा है? जी, फोन से ट्रेनिंग लेना बोलने से एक प्रकार से सोच में पड़ जाना है। कैसे बोलने से, अभी जो हम लोग का जेंडर वाला ट्रेनिंग जून में हुआ था जनपद में, जब हम लोग बैठे थे तो लैपटॉप में बार बार नेटवर्क पकड़ नहीं रहा था, उनका बात नहीं समझ पा रहे थे। तो जो भी वो हम लोग को जो मूल्य बात बताने वाले रहते हैं, जो हमको आगे चल के काम करना होता है, वो काम में हम लोग का बहुत ही परेशानी वाला बात है, क्योंकि जो ट्रेनिंग हमको दिया जाता है उसी आधार पे हम लोग गांव में जाकर काम करते हैं। अभी तक हमारे जेंडर जीआरपी सोच रहे हैं कि जून में जो ट्रेनिंग दी है वो क्या का ट्रेनिंग हुआ, क्या से हम लोग काम करेंगे वो है। और जैसे कि हर जगह नेटवर्क नहीं देता है, हर जगह बिजली नहीं होता है, तो नेटवर्क से जब हम लोग को प्रशिक्षण देते हैं तो हम लोग का जो काम काज है उसमें प्रभाव पड़ रहा है। और कुछ? और जैसे कि नेट पैक भी जैसे डालना पड़ता है, किसी के पास रहता है किसी के पास नहीं रहता है, आपस में संपर्क टूट जाता है। हम बताना चाहते हैं लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास बैलेंस नहीं है, हम बात नहीं कर सकते हैं। तो नेट से बहुत ही ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग ट्रेनिंग अच्छा से नहीं ले पाते, ले भी नहीं पाते हैं, दे भी नहीं पाते। तो सही में एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात बताई है। देखते हैं इसको लेके आगे क्या हमारी जो जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस पे कैसे बात होती है। अभी मैं अपनी कॉलीग नेहा को आगे का जितना भी सेशन है इसको टेक ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। नेहा, ओवर टू यू। Our next question is for Sajni Chechi. Can you tell us a little bit about your experience of doing meetings telephonically, on the telephone or online, please? How has it changed for you? Chechi, can you hear? Hello? Sajni Chechi? You'll have to unmute yourself. Hello, Sajni Chechi? Kaikanando? I think there's a network delay. She disconnected. It's all right. We can come back to her. Meanwhile, मैं तुलसी दीदी से पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा आप बता सकती हैं आपने शायद राशन कार्ड बनवाने के लिए पंचायत के साथ काम किया था, थोड़ा उसके अनुभव के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं प्लीज? अनम्यूट कीजिए अपने आप को तुलसी दीदी, सुनाई नहीं दे रहा।
हाँ बोलिए। शुरुआत में हमको जब राशन कार्ड करवाने के लिए हम गांव में गए तो उस टाइम बहुत सारी दिक्कत आई थी, जैसे कि जीपी के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, क्योंकि इसके इजाजत हमको नहीं मिला था। जिस तरीके से हमको बार बार हम एप्लीकेशन देने से भी हमारा काम नहीं होता था। ऐसे तो लगभग 2 महीना 3 महीना तक लग गया, राशन कार्ड नहीं हो पा रहा था। तो इसी कारण एक बार हमारा गांव में एक मीटिंग हुआ। मीटिंग के जरिए हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सर आए थे और हम तो 2-3 महीने तक राशन कार्ड के लिए बहुत सारे लोग के पास गए, ब्लॉक में भी आए, पंचायत के से आर को भी बोले थे, लेकिन वो नहीं सुने थे। लेकिन एक दिन ऐसा हमारे गांव में मीटिंग आया, तो मीटिंग आने से सर जो आए उनको हम बताए, सीएलएफ के माध्यम से, जीपीएलएफ के माध्यम से बताए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए। तो वो सर जब भी उन लोगों को, वो जो पंचायत में जो रहते हैं ब्लॉक के स्टाफ, उनको बताए कि उनका सहायता क्यों नहीं करते। उसी दिन से अभी तक कोई भी दिक्कत हमारा तो राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं आता है। उस दिन से अभी तक मैं 50 लोग का राशन कार्ड करवाई हूँ। कोरोना परिस्थिति से पहले तो मैं 35 लोगों का राशन कार्ड करवा दिया, और कोरोना की परिस्थिति में 15 लोग का राशन कार्ड भी अभी करवा दी हूँ। उनमें से हमारा 4 टारगेट महिला ग्रुप भी है, यथा किशोरी, नवदंपति, गर्भवती और प्रसूति महिला। फिर एक और अच्छी बात, कोरोना के पहले सिर्फ राशन कार्ड से चावल मिल रहा था, बस चावल मिल रहा था। लेकिन कोरोना की परिस्थिति में चावल और सरकार से 3 महीना तक के दाल, वो 3 किलो 1 महीना में वो दे दिए, बस इतना ही शुरुआत में। लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं मिली थी, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओके, यही सवाल फिर अस्मिता दीदी के लिए। थोड़ा सा आप अपना अनुभव बता सकती हैं क्या पंचायत के साथ कोरोना के समय में काम करने का? जी, हमारे यहाँ कोरोना के समय पंचायत से कोई भी सुविधा किसी से नहीं मिला, चाहे राशन कार्ड बनवाने से हो या कुछ भी हो। मुझे यहाँ से कोई भी सपोर्ट किसी से नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोगों ने कोरोना के काल के टाइम में सीएलएफ में कुदरी ने मिलके मास्क बनवाए थे, और उसमें करीब 500-600 दीदी ने मिलके अपने घर पे ही मास्क बनवाए और बाहर ब्लॉक में भी दिए। और फिर स्वाभिमान के जरिए कुछ दीदी को भियो में जो कुपोषित थी उसे भी हम लोगों ने दिए। लेकिन हमारी पंचायत में बहुत जनसंख्या है, तो उसके लिए मुझे पता चला कि मुखिया जी को 9,10,000 रुपया मिला है, जो कि पंचायत में सभी के घर में 4-4 मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, बाल्टी, जग, तौलिया, इतना सारा चीज देना है। हम लोगों ने जो मास्क बनवाया, तो हम लोगों ने पूरे पंचायत में मास्क नहीं बांट सके, क्योंकि हम लोग वीओ लेवल पे जो कुपोषित दीदी थी, किशोरी थी, गर्भवती थी, मैंने उससे ही मास्क दिया, मैंने उससे ही बांटा। लेकिन जो जो दीदी छूट गई, जिसे हम लोग नहीं दे पाए, उसको तो मुखिया जी को देना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख या 2,60,000 तक का ही मास्क खरीदा, और गांव में किसी का घर में 1 मास्क या फिर 2 मास्क, किसी का यहाँ नहीं ना भी दिया है। कोई अगर जान पहचान का है तो उसके घर में 4 भी दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं किसी को दिया। अगर 2 ही मास्क दिया तो उसके साथ साबुन, सैनिटाइजर भी देता, जो कि नहीं। एक तो कोरोना काल में गांव में सबका काम छुटा हुआ था, जो खाने पे लायक वो कोरोना काल में मास्क कहाँ से खरीदेगा या साबुन सैनिटाइजर कहाँ से खरीदेगा। कम से कम अगर मुखिया जी के जरिए अगर साबुन सैनिटाइजर अगर और परिवार में कम से कम 4 मास्क जो देने का, तो वो भी अगर दे दिया जाता तो वो 2-3 महीने कम से कम हाथ तो धोते, सैनिटाइजर जो कहीं बाहर जाते सैनिटाइजर तो वो हाथ में लगाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं मास्क भी वितरण नहीं किए सही ढंग से, किसी के यहाँ मिला, किसी के यहाँ ना भी मिला। अगर गांव में सभी को मास्क मुखिया जी की तरफ से अगर मिला रहता, तो हम लोग को भी जब काम के लिए हम लोग गांव में जाते, दीदी के घर पे, दीदी के गांव में
जाते तो वहां पे हम लोग को भी थोड़ा देर के लिए ये लगता है कि नहीं, दीदी जो घर से बाहर आई है, सवाल जो पूछ रहे हैं उसको तो मार्क्स लगाई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर 2 मार्क्स दिए तो घर से जो बाहर गया वो लगा के चले गया, घर में जो महिलाएं वो तो मार्क्स लगाए ही नहीं। और इसमें जो हम लोगों ने जब मार्क्स बनवाए थे उसमें करीब 300-400 दीदी ने मार्क्स बनवाई, जो कि हम लोगों ने ब्लॉक में, मनरेगा में और स्टेशन में दिए थे। तो ऐसा काम हम लोग को लॉकडाउन में मिला 500-600 महिला को, जो कि मास्क बना के अपना घर का जो है कुछ खर्चा राशन पानी का जो है उससे मिला। और हमें पंचायत में इस तरह से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला पंचायत की तरफ। Bharti, we are reconnecting with Sajni ji. Please continue. Are you not able to connect with Sajni ji? She is connecting. Yeah. Oh, she's here. Sajni ji. Is she there? I just saw her name. Sneha, could you ask, please? I can't see her name. Can you? Bharti. Sajni Chichi. She connected and then she disconnected once again. She's not here. Okay. तो अभी मेरी तुलसी जी से और एक अच्छी चीज उन्होंने बताई थी, मतलब ये सुनने में आया था कि ये जो हमारी कम्युनिटी किचन, जो सामुदायिक रसोई करके ऐसे कुछ आप अपने ग्राम संगठन की तरफ से करवाए थे, वो क्या क्या अनुभूति रही, आप थोड़ी सी उसके बारे में बताइए ना, कैसे सहयोग किए, क्या किए। जी तुलसी जी, अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो तुलसी। हाँ मैडम किए। पहले तो शुरुआत में हमको बहुत सारी दिक्कत आई थी, क्योंकि सरकार की सुविधा अगर जीपी में आई है तो सभी लोग पाना चाहेंगे। इस कारण लोगों ने जब जान चुके थे कि सरकार की ऐसी ऐसी सुविधा आई है, तो हर तरह का सवाल हमको करते थे कि हाँ ये आई है, थोड़ा बचत लोगों को दे देंगे और ये मिलजुल के बांट के खा लेंगे। तो इस तरह की भी बातचीत हमारे साथ वो लोग किए। लेकिन हम तो बहुत सारी दिक्कत में आ चुके थे, तो हम खुद ही फैसला किए कि ऐसे तो हम नहीं सबको बांट सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो हमारे जीपी में जो ब्लॉक सार रहते हैं उनके साथ मिलकर, हमारे सीएलएफ का प्रेसिडेंट, जीपीएलएफ का प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमने एक छोटा सा मीटिंग रखा कि जो सरकार का समूह रसोई जो सुविधा आई है उसको हम किस तरह से लोगों को पहुंचा सकते हैं। उसी दौरान तो हमारा एक हल निकल आया कि ये बस सभी लोगों का देने के लिए सरकार ने नहीं दिए हैं, सर्वे करेंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग हैं और जो निस्सहाय गरीब श्रेणी का लोग हैं उनको ही देना है। तो हम मिलकर डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे, तभी हमको पता चलेगा किसके पास राशन कार्ड नहीं है और किसके पास पेंशन नहीं मिल रहा है बुजुर्ग को, और किसके पास बहुत सारी तकलीफ है जो कि खाने को भी उनके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम डोर टू डोर मिलकर हम जाकर पंचायत में जो गांव है सर्वे के दौरान हमारे को 35 लोग का डाटा मिला कि 35 लोगों को डाटा मिला। तब हम आकर 35 लोगों का डाटा तो मिल गया, लेकिन हम फिर से एक बार पंचायत में मीटिंग करके ये 35 लोग का तो डाटा मिल गया, उनको तो हर रोज खाना देना चाहिए, तो ये कौन चलाएगा, ये काम कौन करेगा। तो हम जो जीपी में जो हमारा एक अच्छा एसएजी मेंबर के लिए जिसमें 12 महिला रहते हैं, उनको साथ हम बातचीत किए, फोन के माध्यम से बातचीत किए, ऐसे सरकार की सुविधा आई है, क्या आप लोग चला सकते हैं। तो वो लोग भी राजी हो गए और इसी दौरान हमने
1 महीना तक 2 टाइम की खाना उनको हम दिए। और क्या क्या दिए, सरकार से पीडीएस का सुविधा तो हमको मिल गया, लेकिन गांव के जो छोटे छोटे दुकान में हमको दाल, तेल और जो भी राशन का सामान थोड़ा सा मिला। और जो न्यूट्रिशन गार्डन करते हैं उनके पास से हम कुछ कुछ सब्जी लेकर हम 35 लोग को रोज 2 बार खाना देते थे 1 महीना तक। इसी दौरान हमारा सरकार की जो समूह रसोई 1 महीना तक चालू रहा। बस इतना ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक एक करके पूछेंगे। अभी तक हमने जितने भी समस्याओं पे बातचीत की है, इनको सुधारने के लिए आपका क्या कोई सुझाव है क्या? एक एक करके आप बताइए। तुलसी जी, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। तुलसी दीदी। अच्छा, अस्मिता दीदी आप बताइए फिर। जी, मैं सुझाव में ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ लॉकडाउन में जो मास्क बना था उसमें जो कुछ दीदी ने मास्क बनाई थी और उसमें वो अपने परिवार का जो है अपना खर्चा उठाई, तो उसका कहना है। और हम लोगों का पूरे बिहार के लिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बिहार में छोटे छोटे ऐसे रोजगार इस वक्त में कोरोना काल में शुरू कराया जाए, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सलाई बनाना, या फिर सरकारी स्कूल में जो यूनिफॉर्म, लड़कियों का स्कूल ड्रेस, लड़कों का, ये सब जो है अगर हमारी गांव की दीदी को इस वक्त में अगर ऐसा काम अगर दिया जाए तो वो अभी जो कोरोना काल में महाजन के पास अपना घर परिवार चलाने के लिए या फिर अपना कोई भी दिक्कत तकलीफ में दवाई के लिए वो जो महाजन के पास जा रही है, कम से कम वो महाजन के पास न जा पाए, क्योंकि अगर इसमें वो काम करेगी तो वो काम करने से जो उसको आमदनी मिलेगी वो अपना परिवार भी चलाएगी, और जीविका से जो वो कुछ लोन लेके रखी हुई है तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके लोन भी चुकता कर देगी। तो मेरा गुजारिश है कि मेरे यहाँ पे छोटे छोटे रोजगार को उपलब्ध कराया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी दीदी हैं जो बहुत सारे काम में निपुण है, वो ऐसे ऐसे काम कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ काम ऐसा शुरू किया जाए जो हमारी दीदी करके अपना गुजारा करे, और थोड़ा थोड़ा फिर उसी से समूह में भी पैसा जमा करे और महाजन के पास वो नहीं जाए, महाजन के पास से रुपया उसे नहीं लेना पड़े। और स्वाभिमान भी यहाँ पे स्वाभिमान का भी काम चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो स्वाभिमान का काम भी आगे चले, ताकि स्वास्थ्य पे जो है ध्यान रहे। स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जो कमाएंगे वो लोन में देंगे, अपना परिवार चलाएंगे। थैंक यू अस्मिता दीदी। तुलसी दीदी आप बताएंगी अभी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम। मैडम थोड़ा क्वेश्चन जो बोल रहे थे वो थोड़ा बोल दीजिए, मैं बोल दूंगी। अच्छा, नहीं, मैं पूछना चाह रही थी, आज जो हमने बातचीत की है, हाँ। इनके लिए, इन समस्याओं के लिए आपके पास कोई सुझाव है क्या जो आप देना चाहेंगी? हाँ मैडम, सबसे पहले तो मेरे गांव में एक प्रॉब्लम है, जो आयरन टैबलेट और जो हमारा कैल्शियम टैबलेट जो महिला को, किशोरी को मिलता है, वो सफिशिएंट के तरफ से नहीं मिलता है। अगर सरकार की तरफ से ये महीने में हर रोज मिलेगा तो हमारे गांव में जो टारगेट ग्रुप है उनका खून की कमी नहीं होगा। और दूसरा,
हम जब मीटिंग करने जाते हैं तो किसी के बाहर बैठ के मीटिंग करते हैं या स्कूल के बाहर बैठकर मीटिंग करते हैं। इसी से हमको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अभी तो बारिश के मौसम में अभी तो कोरोना की परिस्थिति में ऐसे भी सामना भी करना पड़ता है। किसी का बाहर बैठो तो गीला हो जाता है, तो बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत आती है। तो सरकार से हमारा यही एक निवेदन है कि सरकार की तरफ से अगर सबके क्लस्टर में एक एक स्वाभिमान का एक ऑफिस होने से हमको काम करने में और ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। ललिता जी, आपके यहाँ से कोई सुझाव? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, जैसे अभी हम लोग महामारी के दौरान जो मास्क वितरण किए, कई घर में हम लोग ने चावल पहुंचाया, तो ये सिर्फ हम लोग एक दो के बीच में ही हुआ। मेरा एक ग्राम संगठन भवन है, उसमें अगर हम लोगों को इंटरनेट जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, बिजली हो गया, अगर इस चीज का हमको सुविधा दिया जाए तो हम लोगों को, अभी कोरोना पता नहीं कब छूटेगा, तो हम अगर हमारे कैडर लोगों के पास भी अगर मोबाइल फोन हो, जैसे बैलेंस का भी सुविधा दिया जाए, इंटरनेट का भी सुविधा दिया जाए, तो हम कैडर लोगों के माध्यम से, हमारे ग्राम संगठन में अगर रहेगा तो हम उसके माध्यम से हम काम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू। Sajni Chechi, are you here? Can you hear? She's back. I can see her. Hello. ചേച്ചി, സജിനി ചേച്ചി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? We lost her. You can go ahead. Okay, all right. So कुछ हमारे पास ऑडियंस से कुछ सवाल हैं, उन्हें हम पूछते हैं अभी। ललिता दीदी, आपके लिए एक सवाल है कि आपके गांव में एम्बुलेंस नहीं था क्या, जो आप अभी बता रही थी आपको गाड़ी मंगवाना था? एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगवाया आपने? तो अभी जैसे कि एम्बुलेंस तो अभी कोरोना महामारी में कभी यहाँ कभी वहाँ, तो एम्बुलेंस में हमारी है वहाँ, लेकिन उस सिचुएशन में कहीं और लगा था एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस है, बस यही परेशानी है कि अगर हम लोग को जो ये अभी जो मैं बोली आप लोगों को कि कंप्यूटर, इंटरनेट, अगर टीवी या तो मोबाइल से हम लोग से हमको काम करने में आसानी होगी। एम्बुलेंस है गांव में और फोन करने से आ जाती है, लेकिन वो कहीं फंस गई थी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये आपके गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो शिशुवती महिलाएं, इनके लिए खास क्या मतलब क्या प्रोविजन या क्या सुविधा की गई थी एसएचजी और वीओ की तरफ से? ललिता दीदी, ये सवाल आपके लिए आया है ऑडियंस से। जी, जैसे इस महामारी में गर्भवती दीदी लोगों को गर्म भोजन घर घर पहुंचाना, आंगनबाड़ी में तो नहीं आते थे खाने के लिए, तो हम लोगों ने 9 गर्भवती को घर घर में पहुंचाए खाना, और जैसे विकलांग है उनको हमने राशन दिया, और जो विधवा महिला है उनको हमने 3-3 हजार रुपए बीआरएफ राशि से ग्राम संगठन के माध्यम से उनको घर खर्चे के लिए हम लोग दिए। और जैसे कि स्वास्थ्य, जो बच्चे अभी कमजोर थे, जुलाई महीने में मैंने 2 लोगों को हॉस्पिटल भी भेजे हैं भानपुरी में उनको, और वो स्वस्थ भी हैं, अभी ठीक हैं। और जो इस महामारी के दौरान हमारे ग्राम संगठन के माध्यम से 300 मास्क भी वितरण किए हैं। I just like to tell everyone, please put your questions in the chat box. Is Sajini ji back? Hello. Okay.
ओके, एक सवाल आया आपके लिए, क्या आप लोगों को मानदेय मिलता है कि आप वॉलंटियर के तहत मतलब की तरह काम कर रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मेरे को है ललिता हाँ, को भी पूछ रहे हैं। तीनों के लिए है एक्चुअली सवाल। थोड़ा बताइए, जो कोरोना के लिए आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, इसमें क्या स्थिति है इसकी? हम लोग तो जैसे कोरोना के महामारी में हम लोग अपना मानदेय के लिए काम नहीं किए थे, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन हम हमारा मानदेय बनता है, हम लोग अलग रिपोर्ट देते हैं, जैसे मानकुल में जुड़े हैं हम लोग, जेंडर में जुड़े हैं, जेंडर का काम करते हैं तो जेंडर के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, उसका मानदेय मिलता है। लेकिन हम लोग जो कोरोना के महामारी में जो हम लोग काम किए, घर घर पहुंचाए, किशोरियों को हमने स्टेपरी भी वितरण किया था। लगभग हमारे घोटिया क्लस्टर के अंतर्गत हमने 33,000 स्टेपरी वितरण किए थे, मैं खुद की थी। और हम इनका मानदेय हमको नहीं मिला था, हम एक सहयोग के रूप से किए थे। थैंक यू दीदी। एक और सवाल आया है, तीनों के लिए है। अगर गांव के लोगों को, खास करके जो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आंगनवाड़ी जाने का डर हो कोरोना की वजह से और वो नहीं जाती है, तो समूह की दीदी किस प्रकार सहायता करती हैं? मैं वही तुलसी या हमारी जो अस्मिता है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को अनम्यूट करें और बोले अगर कुछ उत्तर देना है। तुलसी या अस्मिता? तुलसी दीदी, आप पोषण सखी आप बोलना चाहेंगी? मैडम, हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना परिस्थिति में जो गर्भवती महिला है, जो मेडिकल उनका जो 9 महीना हो चुका है, वो नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये शायद मेडिकल के अंदर बहुत सारे लोगों, किसी का वो डर उसका मन में रहता, लेकिन हम उसको समझाते हैं, आशा दीदी और आंगनबाड़ी दीदी के साथ मिलकर उनको समझाते हैं कि अगर गांव में तो कोई भी सुविधा नहीं है, गांव में अगर कोई भी तुम्हारा खून की कमी हो सकता है, या तुम्हें और कुछ भी सहायता की जरूरत तो गांव में नहीं मिलेगा ना। इस तरह से उनको समझाते हैं और हम मेडिकल लाके मेडिकल में उसका एडमिट भी करते हैं। थैंक यू। Sajani ji, Sneha, I request if you could ask this question. It says, are there particular things that they started doing during this period which they would like to take forward in the future? What solutions did they find during this time of corona? If you could ask Sajani ji. സജനി ചേച്ചി, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറെ ലാസ്റ്റ് 4-5 months കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സമയം ഇതിന് ഏതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക? മാം, ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോയായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരി, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെയും ചെയ്ത പണിയൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാ, ഇത് കൊറോണ സമയം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് എന്താ ചേച്ചി ആലോചിക്കുന്നത്? അതായത് കൊറോണ പീരീഡില് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൂടണ്ടെന്നൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മഹാമാരി പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു സൈബർ ജാലകം പോലെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ്, മെസ്സേജസ്, ന്യൂസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിയർ പോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കൂട്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് വഴി അയൽക്കൂട്ട പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളെയും വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയും ആ NSC മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അവര് തൊട്ട് പരിധിയിൽ വരുന്ന അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അംഗങ്ങളെ കൂടി അവർ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ CMHLS ലോൺ കേരളത്തിലെ 2000 കോടി രൂപ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ച്
എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും പച്ചക്കറി വിത്തുകള്, പച്ചക്കറി തൈകള്, മീൻ വളർത്താനുള്ള മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങള്, പശു, കോഴി, ആട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻകം റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. സോ व्हाट दीदी ये कह रही है कि हम लोग ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो काफ़ी रिलाई किया टेक्नोलॉजी के ऊपर, व्हाट्सएप वीडियो मीटिंग्स, और उसी में हमने क्वेश्चनर्स बनाए, जानकारी इकट्ठा की और लोगों को जानकारी भी देना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के तहत। उसी से हमको पता चला कि हमको कहीं कहीं से फंडिंग भी मिल सकती है। सीएम फंड के थ्रू हमने 2 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए इन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। फिर हमने विलेज पंचायत के थ्रू भी इनका जो फंड्स जनरेट किए उससे हमने काफ़ी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ सपोर्ट किए हैं हमारे फेडरेशन के तहत, और हम चाहते हैं कि इन्हीं एक्टिविटीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। ശരി ചേച്ചി, വേറെ എന്താ പറയാനാ? ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ NHC വഴി സർവേ നടത്തിയ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പോ ടിവിയോ ഫോൺ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ അതെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ KSFയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. कुटुंबश्री के तहत उन्होंने ये जाना कि अभी आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए अगर लोग अपना മന്ത്ലി 200 റുപ്പീസ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. മെമ്പേഴ്സ് 200 റുപ്പീസ് തരുവാണോ? 500 rupees per month. After 3 months they got a laptop. After they pay 1500 rupees, they got a laptop and they continue the amount repay. शरी तो 500 पर मंथ के बेसिस में 3 महीने के लिए अगर वो लोग जमा करते हैं तो उनको एक लैपटॉप दिया जाता है जिससे बच्चों का एजुकेशन कंटिन्यू हो सके। ये भी उन्होंने अभी एक नया एक्टिविटी शुरू किया। ओके, 2 और छोटे सवाल हैं। एक ललिता दीदी आपके लिए, जब मतलब सामग्री नहीं आती या खाने की दिक्कत होती है या फिर ये जो VHSND होता है इसको जब आयोजित नहीं किया जाता है तो क्या आप ब्लॉग या कहीं पे भी बताती हैं क्या? कभी आपने बताया है? वो बोल रही है, वो समझ नहीं। भारती आप पूछिए ये सवाल। कभी उन्होंने ये बात उठाई, उनको मौका मिला एक्चुअली ये बात उठाने के लिए डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? वो एक्चुअली ललिता दीदी जो नेहा दीदी बता रही है कि जब आपने देखा कि आपके गांव में आपकी जो आंगनवाड़ी में हर महीने जो उसको बोलते हैं टीकाकरण दिवस या आरोग्य दिवस जो बोलते हैं, जो हमारी माँ और बच्चों के लिए जो सारी टीका और आयरन की गोली जितनी भी समस्याएं होती है या वो राशन ले लो, जो भी ऐसी सारी समस्या को लेके आपने कभी अपनी ब्लॉक में या अपनी जैसे ग्राम पंचायत में इन सारे जगह पे कभी इसके बारे में बताए हैं समस्या होती है करके? जी, टीकाकरण और जो गर्भवती महिला के लोगों के लिए आयरन गोली या चाहे किशोरी लोगों के लिए वो रेडी टू ईट, गर्भवती लोगों के लिए रेडी टू ईट, ये सब तो हमारे आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता ही है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम अच्छे करती हैं, हम लोग के साथ भी सहयोग करती हैं, हम भी उनका सहयोग करते हैं। लेकिन जब कोरोना महामारी में अभी 28 मार्च को जब सूखा राशन वितरण हो रहा था तो हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी हैं उन्होंने उनको उनके खुराक के हिसाब से राशन नहीं दिया था। तो मैंने जब मैं नहीं थी, मैं अपना फील्ड में गई थी, तो उधर से आई तो मेरी देवरानी जो है वो भी एक शिशुवती है, तो मैंने उनसे कहा कि आपका राशन दिखाओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी क्या कह रही है। तो उन्होंने मेरे को राशन दिखाया, वो बिल्कुल ही मतलब ना मात्रा के हिसाब से उनको राशन दिया गया था। तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मेरा विवाद भी हो गया, तब से वो थोड़ा सा मेरे से बात नहीं करती हैं,
मैं उनको कहा कि अभी जैसे कोरोना का महामारी है, गर्म भोजन भी लोग खाने नहीं आते हैं, घर में इतना तकलीफ है, इनको अंडा जो घर में अंडा जो इनको देने का होता है वो भी इनको नहीं मिलता है, और आप जो इनके लिए जो सूखा राशन आया है उसको भी आप अच्छे से वितरण नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इसके बीच में उनके साथ मेरा विवाद हुआ था। और जो टीकाकरण है, जो कमजोर गर्भवती है, कमजोर शिशुवती है, चाहे वो किशोरी हो, इन सभी के लिए हम लोग हमारे आलवाही गांव में तो नहीं होता है टीकाकरण, डायरेक्टली वो घोटिया भेज देती हैं तो वहां मैं चली जाती हूँ। चलो, थैंक यू ललिता दीदी। अस्मिता दीदी, आपके लिए एक सवाल है कि क्या आपको कोई कोरोना के लिए मतलब कोरोना से बचाव के लिए कुछ ट्रेनिंग मिला था क्या जब आप पहले गई थी? जब आपको पहले बताया था कि आपको सर्वे वगैरह करना है, तो आपको कोई ट्रेनिंग मिली थी? साथ साथ में समूह की दीदियां क्या कर रही हैं? ये जो कोरोना को लेकर के भेदभाव हो रहा है, उसके लिए समूह की दीदी क्या कर रही हैं? अस्मिता दीदी, सवाल आपके लिए था। अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। एक बार क्वेश्चन फिर से दीदी। अच्छा, ये जब आप सर्वे करने गई थी राशन कार्ड वगैरह, जैसे आपने शुरू में बताया कोरोना के बचाव के लिए, आप से बचाव के लिए आप लोगों को आपको कोई इसके लिए कोई साथ में कुछ मतलब मास्क वगैरह कुछ आपको दिया था क्या, जिससे आप खुद सुरक्षित रह पाती? साथ साथ में जो कोरोना की वजह से भेदभाव हो रहा है, इसके लिए इसको देखने के लिए समूह की दीदियां क्या कर रही हैं? जी, हम लोग जब सर्वे के लिए जाती थी तो हम लोगों को हाथ में पहनने के लिए और मास्क, सैनिटाइजर, रजिस्टर, कलम अपना मिला था, और हम लोग उससे ही यूज कर रहे थे। और हम लोग को साफ सफाई या दूसरे से कितना दूरी बना के रखना, ये तो स्वास्थ्य के जरिए हम लोग को बताया गया था। और साथ में जब सर्वे के लिए गए थी तो मुझे सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क मिला हुआ था। और एसएचजी में कोरोना को लेके भेदभाव तो है, भेदभाव के ही कारण जो है अभी एसएचजी की दीदी जो है एक जगह एकजुट नहीं हो रही है। इसके लिए अगर स्वाभिमान के तरफ से कुछ बताया भी जाए उसके स्वास्थ्य के लिए, या गर्भवती महिला को हो या धात्री महिला को, तो उसको जो है मोबाइल नंबर से फोन करके ही बताया जा रहा है। वो बैठना नहीं चाह रही है, सबको डर लगा है कि मैं वहां पे जाऊंगी और भी दीदी आएगी, उसे कोरोना है क्या है, समूह में बैठना नहीं चाह रही है, तो वो मोबाइल के नंबर के द्वारा ही उससे समझा रही है। ओके, थैंक यू दीदी। आज के लिए इतने ही सवाल लेते हैं। मैं जल्दी से जो हमने आज बातें सुनी हैं उनको जल्दी से समाप्त कर लेती हूँ। कुछ सुझाव जो हमें मिले हैं, एक तो ये है कि हमें लोकल सॉल्यूशन, जैसे अस्मिता दीदी ने बोला, छोटे छोटे रोजगार, लोकल सॉल्यूशंस की जरूरत है फॉर स्टेडी इनकम, मनी ऑर्डर इकोनॉमी। दूसरा रेकमेंडेशन ये है कि बेटर डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, जैसे ललिता दीदी ने बोला यहाँ पे नेट की दिक्कत है, और ये तो अब खासकर मतलब CLF जहाँ पे इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसों का लेन देन होता है, इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है डिजिटल लिटरेसी। सो दिस इज अनदर सोल्यूशन, अनदर रिकमेंडेशन। साथ साथ में VO के लिए भवन, शायद तुलसी दीदी ने बोला था कि मतलब मीटिंग कंडक्ट करने के एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग बैठ करके बातचीत कर सके। सॉरी, आई विल स्विच ऑन माय वीडियो। साथ साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो दीदी लोग कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और साथ साथ में जैसे मानदेय की बात उठ के आई थी, उनको जो मिलना चाहिए वो चीज मिले।
कुडुमश्री के एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन, एक मेच्योर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बड़े से किचन को खुद सजनी दीदी ने बताया कि उन्होंने फंड्स कैसे मोबिलाइज किए, कैसे उन्होंने खुद एमएलए से बात करके, विलेज काउंसिल से बात करके फंड रेज किया कम्युनिटी किचन चलाने के लिए। साथ साथ में हमने ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे अस्मिता दीदी ने बताया, जब बाढ़ आती है या फिर जब भी कोई इमरजेंसी का सिचुएशन होता है तो इन चीजों से हमें खाद्य सुरक्षा मिल सकता है। साथ साथ में हमें ये भी पता चला है कि जो जरूरी स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी है, इनको सामने मतलब इनको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल समूह में स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा बातचीत हो रही है। साथ साथ में हमारे माइंड में एक ये भी सवाल उठा कि जो जेंडर है, जो महिला पुरुष में जो भेदभाव है, चाहे घर में हो या वर्क प्लेस पे हो, इससे हमारे काम करने पे इसका क्या असर होता है। अगर हम महिला होते हैं तो हम कुछ काम कर सकते हैं, अगर हम महिला हैं तो घर को भी संभालना होता है और काम को भी देखना होता है। तो ये भी हमें सुनने को मिला। तो थैंक यू, आप लोगों ने हमें अपना समय दिया, और इन्हीं चीजों को हम 21 तारीख के मीटिंग में देखेंगे। अलग अलग लेवल से, स्टेट से, ब्लॉक से लोग आ रहे हैं, कुछ समाज सेवी संस्था से भी आ रहे हैं, वो बताएंगे, अपनी राय देंगे इस पर कि और आपकी सुझाव भी सुनेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, आपने अपना हमें टाइम दिया, एंड आई वुड लाइक टू हैंड दिस ओवर टू सुमेघा नाउ टू क्लोज प्लीज। थैंक यू। नेहा, सुमेघा नहीं है, तुम ही सुमेघा नहीं है। Okay, all right. So, all right. So I'd like to quickly close then. Thank you, Didi log, आपने हमें अपना समय दिया. I'd like to thank all of our panelists. Or also like to thank the 4 SRMs, Jeevika, Bihan, OLM, and Kudumshri. Thank you to all the women collective leaders who gave us insights and help us connect with different people on the ground. UNICEF और NRM को भी करना चाहेंगे। On behalf of Roshni and LIC, Lady Irwin College, we would like to thank PHI for organizing this event, taking this step to amplify emotions of SH women. Thank you. We look forward to participation on it as well, where we have different levels of policy influencers who will be responding to the issues raised in this session. And thank you for tuning in.